Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point and I am Mohammed Shafiq. You can follow me on Instagram, Twitter, Facebook and even on WhatsApp. In today's video, we have M English Part 2, Romantic Novel, paper number 3, and the name of the novel is Twilight in Delhi by Ahmad Ali. It is very magnificent and remarkable novel which describes the decline and downfall of Indian Muslims culture and civilization. There are many themes, several themes are knitted and weaved by Ahmad Ali in this novel, and I would like to share with you about those themes. But before starting the video, I would like to tell you what is theme. Theme is called a universal ideas. For example, honesty is the best policy, tit for tat, and pride has a fall, as you sow so shall you reap. These are very famous quotes and proverbs. You have heard it earlier. So there are universal ideas in these lines. So similarly, universal ideas are called themes. So several themes are dealt with by Ahmad Ali in this novel Twilight in Delhi. So the question of major themes will be translated today by me, line by line, paragraph by paragraph and word by word for the students, because it is quite easy for the students to prepare in this way. What is the main theme in this novel? I share with you, I tell you what Ahmad Ali says in the following words about the theme. Ahmad Ali says, "My purpose in writing the novel was to depict a phase of our national life and the decay, destruction of a whole culture, a particular mood of thought and living, values now dead and gone already right before our eyes." This is what Ahmad Ali shares with us about the main theme, downfall of Indian Muslims, culture and civilization. So some other themes. Second one is domestic life is also very important theme in it. And this novel also deals with rituals and customs, and landscape, sights and sounds are also the theme of this novel. Destruction of grand culture, as I said earlier, of civilization and cultures, grand and its destruction. Next one is time and tide, means ups and downs of time is also the theme. Theme number 6 is the importance of change. Theme of change is also described beautifully. And the next number 7 theme is generation gap, which is shown to us through the gap of father and son, Mir Nihal and his son Asghar. Next very sensitive theme is sexual stress is also there. And the last one is escapisms. All the characters escape in this novel, which is also its theme. So at last, subscribe my channel, like my videos, share it and send your comments in my comments box. And if any student need any other assignment of MA English Part 1, Part 2 from any writer, from any syllabus of GC University, Faisalabad, Sargodha or Punjab University, I am available. Send me your comments in comments box. I will definitely try to provide you the fully translated answer for the students of MA English Part 1. So let's start these different themes of Twilight in Delhi. Major themes in Twilight in Delhi. Ahmad Ali clearly states the major themes he has explored in Twilight in Delhi. अहमद अली ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया है उन मेजर थीम्स को जो उसने दरियाफ्त किए हैं दिल्ली की शाम में. इन द फॉलोइंग वर्ड्स मुंदरजा झैल अल्फाज में, माई पर्पज़ इन राइटिंग द नावल वाज टू डिपिक्ट अ फेज ऑफ आवर नेशनल लाइफ. मेरा मकसद लिखने का इस नावल को अक्कासी करना था, इस दौरानिए को, हमारी कौमी ज़िंदगी की, एंड द डेके ऑफ अ होल कल्चर, और जवाल उस सारी सकाफ़त का, अ पर्टिकुलर मूड ऑफ थाट एंड लिविंग, और वो मखसूस अंदाज सोचने का, रहने का, वैल्यूज़ और कदरों का, नो डेड जो अब मुर्दा हो चुकी हैं, एंड गॉन ऑलरेडी राइट बिफोर आवर आइज़ और हमारी आंखों के सामने मुर्दा होते हमने देखी हैं. द डोमेस्टिक लाइफ इज़ कंसिडर्स टू बी द पिवट ऑफ एनी कल्चर और सोसाइटी
घरेलू ज़िंदगी समझी जाती है पीवट मरकज़ किसी भी माशरे और सकाफ़त का। नो पोर्ट्रेयल ऑफ एनी पर्टिकुलर कल्चर इज़ पॉसिबल विदाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डोमेस्टिक लाइफ इट इंटेल्स। कोई किसी भी अक्कासी मुमकिन नहीं है किसी कल्चर मखसूस कल्चर की, और मुमकिन भी नहीं है जब तक कि आप वजाहत नहीं करते मुआशरती घरेलू ज़िंदगी की। इट इंटेल्स जिसकी वो वारस होती है। द राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड अ सब डिवीजन ऑफ द हाउस इनटू टू पार्ट्स। मुसन्नफ़ ने बयान किया है दो अलहदा हिस्सों में एक घर को दो हिस्सों में, मर्दाना एंड जनाना। द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस चीफली एग्जाम्पलीफाइज द वे ऑफ थिंकिंग। नक्शा नवीस ने जिसने घर बनाया था उसने ख़ास तौर पर एग्जाम्पलीफाई मिसाल बनाया था सोचने के अंदाज़ को, ऑफ इट्स डिवेलर्स इसके रहने वालों को, एंड देयर लाइफस्टाइल और उनके ज़िंदगी के अंदाज़ को। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन आर क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड अलहदा की गई हैं जिम्मेदारियाँ मर्दों और औरतों की। द वुमेन वेट फॉर देयर मैन, औरतें अपने मर्दों का इंतजार करती हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग फॉर प्रोविजंस, सुबह से लेकर शाम तक, फॉर प्रोविजन साजो सामान के लिए। हाउएवर द मैन एडमिट द सुप्रीमेसी ऑफ वुमेन इन सम डोमेस्टिक अफेयर्स, मर्द तस्लीम करते हैं सुप्रीमेसी बाला दस्ती औरतों की घर के कुछ मामलात में। टू अरेंज फॉर द फीस्ट, त्योहारों को मनाना एंड सेलिब्रेशंस और तकरीबात को मनाना, स्ट्रिक्टली कम्स अंडर द वुमेन्स डोमेन, ये औरतों की मैदान में ज़िम्मेदारी में आता है। द ड्यूटी ऑफ द मैन इज़ टू प्रोवाइड मनी एंड सोर्सेज, मर्द की ज़िम्मेदारी है पैसा और वसाइल फराहम करना। द नावल डील्स विद द वेरियस काइंड्स ऑफ रिचुअल्स एंड कस्टम्स कॉमन टू ऑल ऑफ अस। ये नावल पेश करता है मुख्तलिफ़ किस्म की रस्म व रवाज और सकाफ़तों, मुख्तलिफ़ किस्म के रस्म व रवाज और मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाज़ों को जो कि हम सब में पाए जाते हैं। द फेस्टिविटीज़ ऑफ मैरिज एंड चिल्ड्रंस आर सेलिब्रेटेड एवरीवेयर, त्यौहार और शादी और बच्चों की पैदाइश मनाई जाती है दुनिया में हर तरफ। सिमिलरली द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूनरल्स एंड सिकनेस अरोज द फीलिंग्स ऑफ डेस्पेयर एंड ग्लूम, और इसी तरह से जो बयान दिया है जनाज़ों के बारे में और बीमारी के बारे में वो उठाता है जज्बात मायूसी के और दुख के। इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम हिस्सों में इंसानों के अंदर, हैंस द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ टेक्स प्लेस, ज़िंदगी और मौत का पहिया चलता रहता है। थ्रू द एम्बिवलेंट फीलिंग्स, नापसंदीदा जज्बात के साथ, ऑफ फेलियर्स एंड अचीवमेंट्स, नाकामियाँ और कारनामों के, क्वल्स एंड रिकन्सिलिएशंस, झगड़े एंड रिकन्सिलिएशन, सुलह सफाई के साथ, द यूनिवर्सल एंड द कॉमनली शेयर्ड थीम ऑफ लव एंड मैरिज, और बैनुल-अक़वामी सतह पर आम तौर पर शेयर किए जाने वाला मोहब्बत और शादी का थीम। फिडिलिटी एंड इनफिडिलिटी, वफा और बेवफाई, आल्सो बिकम्स द इंटरेस्ट ऑफ द राइटर इन दिस नावल, वो भी तवज्जो का मरकज़ बने हैं मुसन्नफ़ का इस नावल में। अहमद अली हैज़ गिवन अ विव्ड एंड ग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। अहमद अली ने बड़ी वाज़े और तस्वीरी जो नक्शा खींचा है दिल्ली के शहर का, इज़ अ मल्टी फेस्टेड वे, मुख्तलिफ़ अंदाज़ों के साथ। ही है सक्सेसफुली ट्राई टू कैटर, उसने कामयाबी के साथ कोशिश की है पकड़ने की, ऑल द डायमेंशन ऑफ इट्स लैंडस्केप, इसके ज़मीनी खतोखाल की डायमेंशन पैमाइशों को, इट्स साइट्स, इसके मनाजर, एंड साउंड्स, इसकी आवाज़ों, एज इफ़ द रीडर इज़ लिटरली वॉकिंग इन द लेन्स ऑफ दिल्ली, और ऐसा लगता है जैसे पढ़ने वाला हकीकी तौर पर दिल्ली की गलियों में चल फिर रहा हो। ही आल्सो ट्राइज टू ऑफर एन इंसाइट इन द पोलिटिकल एंड हिस्टोरिकल डिटेल्स। अहमद अली ने कोशिश की है पेश करने की एक बसीरत, इंसाइट, अकल, दानाई सियासी और तारीख़ी तफसीलात के अंदर। एज इफ़ अहमद अली मीन्स टू पोर्ट्रे, ऐसा लगता है कि जैसे अहमद अली का मतलब है अक्कासी करने का। द सिटी ऑफ दिल्ली एज अ ट्रेजिक करेक्टर्स, दिल्ली के शहर को एक अलमनाक किरदार के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। विच इज़ अलाइव एंड ब्रीथिंग, जो ज़िंदा है, हमारी आंखों के आगे पड़ते हुए लगता है और सांस लेता हुआ। थ्रू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द नावल की तफसील के ज़रिए, एंड द कैरेक्टर ऑफ मीर निहाल और मीर निहाल के किरदार को। ट्वाइलाइट इन दिल्ली रिवॉल्व्स अराउंड द डेवस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रैंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन। दिल्ली की शाम घूमता है इर्द गिर्द तबाही और बर्बादी के उस ग्रैंडवर, उस अजीम सकाफ़त और तहजीब के जवाल और तबाही के गिर्द घूमता है। अहमद अली पोर्ट्रेज द एथिकल डिस्क्रिपेंसी, अहमद अली ने अक्कासी की है अखलाकी फ़र्क की, एथिकल अखलाकी डिस्क्रिपेंसी फ़र्क, एंड माल फॉर्मेशंस और कमज़ोरी ऑफ हिस करेक्टर, अपने किरदारों की। द मेल करेक्टर्स आर अनरूली, जो मेल किरदार हैं वो गुस्ताख हैं, एंड बिट्रे और दगाबाज हैं। दे आर इंडल्ज इन फ्रीवलस एक्टिविटीज़, फजूल किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। लाइक काइट्स एंड पिजन फ्लाइंग, पतंगें और कबूतर उड़ाने में। एंड वेस्टिंग देयर टाइम इन यूजलेस परस्यूट्स ऑफ एल्केमी, और ज़ाया करने में अपना वक्त बेकार
जस्तजुओं परस्यूट जस्तजुओं में ऑफ एल्केमी हिकमत की। देयर फीमेल्स और उनकी ख़वातीन ऑन द अदर हैंड आर क्वाइट अनइन्फॉर्म ऑफ द रियलिटी, और दूसरी तरफ उनकी ख़वातीन भी हकीकत से बिल्कुल अनइन्फॉर्म नावाकिफ़ हैं, एंड सीम इंडिफरेंट टू व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड देम, और लाताल्लुक़ है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन और रस्म व रिवाज के मुताबिक दे रिमेन कन्फाइंड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस, और वो कन्फाइन महदूद रहती हैं अपने घर की 4 दीवारी के अंदर। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन, वो महरूम हैं इल्म और तालीम के हक़ से। अहमद अली आल्सो हैज़ ब्यूटीफुली एम्प्लॉयड द थीम ऑफ टाइम एंड टाइड मद्दोजज़र, यानी वक़्त का ऊंच नीच भी उसने इस नावल के अंदर एम्प्लॉयड इस्तेमाल खूबसूरती से किया है। ही वीव्स हिज स्टोरी ऑन द यूनिवर्सल फैक्ट, उसने अपनी कायनात उसने बुना है अपनी कहानी को इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी हकीकत के ऊपर, दैट टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, के वक़्त का मद्दोजज़र किसी का इंतज़ार नहीं करता। डिस्पाइट ऑल द क्योस, सारी तबाही और गड़बड़ के बावजूद लाइफ गोज़ ऑन, ज़िंदगी चलती रहती है। दम कलंदर गॉड विल गिव, दम कलंदर गॉड अलोन। दस द रिदमिक एंड कंटिन्यूस बीट ऑफ दम 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 दम, रिदम वाली और मुसलसल जो धड़कना है ड्रम का, धम धम दम, बिकम्स सिनोनिमस विद द थीम ऑफ टाइम एंड टाइड। सिनोनिमस ये चीज़ बन जाती है एक जैसी, सिनोनिम्स बन जाती है एक जैसी वक़्त की ऊंच नीच के साथ। द फ्लैपिंग ऑफ द पिजन विंग्स अपीयर्स, और कबूतरों के परों की जो फ्लैपिंग फड़फड़ाहट की आवाज़ है, एज आ रेपिटेटिव स्ट्रेन, ये बार बार रेपिटेटिव बार बार स्ट्रेन बजने वाला एक खिंचाव है थ्रू आउट द नावल, पूरे नावल में। इट कीप्स रिमाइंडिंग ऑफ द लैप्स ऑफ टाइम एंड टाइड ऑफ लाइफ, ये हमें याद दिलाता है लैप्स के गुजर रहा है वक़्त और उसकी ऊंच नीच ज़िंदगी में। दो ह्यूमन बींग्स आर वर्स्ट अफेक्टेड बाय द कार्नेज ऑफ टाइम, वक़्त के धारे से इंसान बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। येट द राइटर फील्स दैट ऑल मोनूमेंट्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय द कार्नेज ऑफ टाइम। मुसन्निफ़ ये कहता है और महसूस करता है कि तमाम मोनूमेंट्स, यादगारें भी मुतासर हैं वक़्त के धारे से। दस द हार्टलेसनेस, बेदिली ऑफ टाइम हैज़ बिन लेमेंटेड, वक़्त की बेदिली पर लेमेंटेड मातम किया गया है एट सेवरल इंस्टेंसेस, बहुत सी मिसालों के अंदर। सिमिलरली अहमद अली हैज़ हैंडल्ड द थीम ऑफ चेंज इन अ डिफरेंट वेज, तब्दीली के थीम को भी उसने मुख्तलिफ अंदाज से हैंडल किया है। ही प्रेजेंट्स चेंज एज एन इनएविटेबल लॉ ऑफ नेचर, वो पेश करता है तब्दीली को नाकाबिले तब्दील फितरत का एक कानून, दैट इज़ बोथ इररेसिस्टिबल, जिसको रोका भी नहीं जा सकता, एंड अनबीटेबल, और जिसको हराया भी नहीं जा सकता। द थीम ऑफ चेंज हैज़ बिन डेल्ट विद डिफरेंट लेवल्स, तब्दीली के थीम को मुख्तलिफ लेवल्स पर डील किया गया है। द चेंज इन कल्चर एंड ट्रेडिशंस, रस्म रवाज में तब्दीली। द चेंज इन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, अमलों में और अकीदों में तब्दीली। एंड द चेंज इन विसिनिटी, इलाके में तब्दीली, आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चेंज। ये चंद मसाले हैं तब्दीली के हवाले से पेश किए जाने वाले थीम की। द चेंज इन रूलर्स, हुक्मरानों की तब्दीली। द चेंज इन वेदर, मौसम में तब्दीली है बिन ट्रीटेड, सलूक बर्ताव किया गया है तब्दीली के साथ एट द बैकड्रॉप ऑफ द नावल, नावल के पस मंज़र में। द थीम ऑफ जनरेशन गैप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स इन द नावल। नस्लों के दरमियान जो फ़र्क आ जाता है राय में, सोच में, अमल में, उसको भी इसमें पेश किया गया है और वो बड़ा अहम थीम है इस नावल के अंदर। मीर निहाल एंड असगर सीम्स टू बिलोंग्स टू डिफरेंट प्लैनेट्स, मीर निहाल और उसका बेटा दिखाई देते हैं कि वो ताल्लुक़ रखते हैं 2 मुख्तलिफ सियारों से। देयर इज़ अ लिटिल कॉमन इन देम, दोनों में एक जैसी चीज़ें बहुत कम हैं। बोथ आर फॉल टू ईच अदर्स, दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, दोनों के दरमियान कमी है कम्युनिकेशन, गुफ्तगू की, एंड अंडरस्टैंडिंग, दूसरे को समझने की। इफ़ असगर इज़ सीन इन कन्फ्लिक्ट विद हिज फादर, अगर असगर दिखाई देता है अपने बाप के साथ तजाद में। मीर निहाल आल्सो डिस्पाइजेस असगर्स मॉन्ग्रल वे ऑफ लिविंग, मीर निहाल भी डिस्पाइजेस, नफरत करता है अपने बेटे के दोहरे अंदाज के साथ रहन सहन के और पहनने के अंग्रेज़ी जूते और उसकी शर्ट्स। इफ़ मीर निहाल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर ओल्ड ऑर्डर, अगर मीर निहाल पुराने दौर का नुमाइंदा है, असगर इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू ऑर्डर, तो असगर ने आने वाले हुक्म, अंदाज और तरतीब का नुमाइंदा है। मीर निहाल्स रेप्रीमेंट्स असगर ऑन फॉलोइंग इंग्लिश फैशंस, मीर निहाल रेप्रीमेंट्स बुरा भला कहता है असगर को मुंदरजा झैल अंग्रेज़ी अंदाज में। वो कहता है कि यू आर अगेन वीयरिंग दोज डर्टी इंग्लिश बूट्स, तुमने फिर वो गंदे अंग्रेज़ी बूट पहन लिए हैं। आई डू नॉट लाइक दैम, मुझे ये पसंद नहीं है। आई विल हैव नो एपिंग ऑफ द फरंगीज़,
मैं ये अंग्रेज़ी जूते पहनकर अंग्रेज़ों की तरह नाचना घर में इन माई हाउस पसंद नहीं है मुझे। थ्रो देम अवे, इनको फेंक के आओ। इन प्राइवेट लाइफ सेक्शुअल स्ट्रेन्स रन इन द अंडरकरंट्स ऑफ एवरी सोसाइटी। ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जो जिनसी खिंचाव तनाव होता है, अंडर करंट्स, वो भी नीचे नीचे चल रहा होता है हर माशरे में, छुप के चल रहा होता है। नो सोसाइटी हैज़ एवर बीन एबल टू रेसिस्ट इट्स चार्म एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी माशरा अभी तक नहीं काबिल हो सका कि वो रेसिस्ट रोक सके इसकी दिलकशी और इसके नताइज को। इवन इफ़ इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड ओपनली, ये खुलेआम भी बहस नहीं किया जा सकता। इट मेक्स इट्स वे थ्रू एब्यूज़। ये जो जिनसी खिंचाव तनाव होता है ये अपना रास्ता बनाता है गालियों के ज़रिए, एंटीडोट्स एंड जोक्स टू मेक इट्स प्रेजेंस फेल्ट, और गंदे मजाक करने के ज़रिए, गंदे लतीफ़ों के ज़रिए, ताकि ये अपनी होने का एहसास महसूस करवा सके। थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस, सीधे और ना सीधे हवालों के साथ, राइटर आइडेंटिफाई द सर्ज ऑफ सेक्स प्रेजेंट इन सोसाइटी। मुसन्नफ़ निशानदही करता है सर्ज, उभरने की, जिन्स की, जो मौजूद होता है हर माशरे में। द राइटर थिंक्स दैट द सेग्रीगेशन ऑफ इस जनाना एंड मर्दाना, मुसन्नफ़ ये सोचता है कि ये सेग्रीगेशन, जो अलहदगी है जनाना और मर्दाना की, हैज़ इट्स वर्स्ट इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, इसके बड़े बदतरीन असरात हैं माशरे पर। सिंस देयर इज़ अ लिटिल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड वुमेन, औरतों और मर्दों के दरमियान राब्ता बिल्कुल जो है वो बहुत कम है। सो बोथ द सेक्सेस आर फैसिनेटेड टू वन अनदर, तो ये दोनों जिन्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ फैसिनेट खिंचती हैं। देयरफॉर द सफोकेशन इन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, रवायती और आम अकीदों को मानने वाले माशरे के अंदर सफोकेशन, मर्द और औरत के अंदर सफोकेशन, घुटन पैदा हो जाती है। और वो घुटन क्या करती है? फाइंड इट्स वेंट, और वो वेंट रास्ता अपना पा लेती है इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेसेस, इस शक्ल के साथ, ट्रेसेस जिसके इशारे मिलते हैं, ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, एक जैसी जिन्स के दरमियान सेक्स का होना, एंड विजिटिंग्स टू द प्रोस्टिट्यूट्स, और तवाइफों के अड्डों पे आना जाना। द वुमेन आल्सो नर्चर, औरतें भी, हालांकि औरतें भी अपने अंदर पालती हैं जज्बात, फीलिंग्स, इमोशंस एंड पैशन इन देयर हार्ट्स, दिलों में। येट दे आर टॉट, लेकिन उनको ये सिखाया जाता है फ्रॉम चाइल्ड, बचपन से, टू स्टिफल सच फीलिंग्स, के वो गला घूंट कर रखें ऐसे जज्बात का। कॉजिंग साइको डिसऑर्डर्स, इससे फिर होता क्या है जब वो गला दबा देती हैं इस तरह के जज्बात का, तो साइको, नफ्सियाती बेतरतीबी हो जाती है, एंड हिस्टेरिया, और वो जुनूनी हो जाती हैं, एज इन द केस ऑफ बेगम निहाल, जैसे कि बेगम निहाल के केस में हमने इस नावल में देखा। द थीम ऑफ एस्केपिज्म इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द नावल, फ़रार हासिल करने का भी थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है इस नावल में। मीर निहाल सीम्स टू बी अ पैसिव एंड आइडल काइंड ऑफ मैन, मीर निहाल दिखाई देता है एक सुस्त और बुतनुमा किस्म का शख्स, विद हिज इंटरेस्ट इन पिजन फ्लाइंग, कबूतर उड़ाने वाली दिलचस्पियों के साथ, विजिटिंग कीप्स और कोर्टसन्स, और जिस्म फरोश औरतों के पास जाता है या उनको अपने पास साथ रखता है, वेस्टिंग टाइम इन एल्केमी, और वो हिकमत में दिलचस्पी रखता है। आलमोस्ट ऑल मेल करेक्टर्स आर एस्केपिस्ट, सारे मर्द किरदार फ़रार हासिल करने वाले हैं, एंड वेस्ट टाइम इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीवियोलिटीज़, और अपना वक्त ज़ाया करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मामूली चीज़ों में, एंड ट्रिवियलिटीज़, और फजूल किस्म की चीज़ों में। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल in the playlist of my channel for MA English Student Part 1 and Part 2 with complete translations of even single sentence and word and paragraph. See you next time in next video. Bye bye.